8 बजे मुझे मेरे प्रीवियस सर हरीश सर उनका फ़ोन आया। देन ही सेड के ग्रुप में तो मैसेज आया कि ही इज़ नो मोर। आई डिडंट हैड वर्ड्स व्हाट टू स्पीक। दूसरे दिन मेरी अकाउंट्स की एग्ज़ाम है। सर ने मुझे बोला है कि 4 बजे क्लास पे आ जाओ, मैं तुमको उधर मिलूँगा। पर कभी नहीं देखा उसके बाद मैंने सर को। कोई भी आपसे कुछ भी एक्सपेक्ट ना करे तब क्या करोगे लाइफ? एक ऐसी फीलिंग होती है ना कि कोई मुझसे क्यों कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। मैं हूँ केपेबल कुछ करने के लिए, ये मैं हूँ, ये मैं कर सकता हूँ। पर उसके पहले भी मेरे अंदर क्वालिटीज थी, पर मुझे पता नहीं था कि थी। Okay, first of all, thank you for being here today. अरे मैम, माय प्रिविलेज। How are you feeling today, dear? I'm feeling super excited, man. I just can't express. This was my in my wish list. I wanted to do this from ages. Oh my god, I just let me first process it. Please take your time. Take your time. You would like to have some coffee or something? No, no, ma'am, I'm good. I'm Good. Fine. So I think you walked in the room yeah. and Dhruv sir was setting everything up. So what was that exact feeling you had? Okay, so when I entered the room, my first feeling was okay. This is something. This is something crazy. I have done something that okay. You are sitting on this Yes, chair I'm with sitting us. on this chair talking with you. I'm just super excited, but yet a little nervous. Dhey, can you tell us who is Dhey without school, without academics, and without marks? DA is a fun person. I'm a seriously a fun person. I'm not sad. I'm not a very serious person. I just want 2 3 people by my side, Very good. my family by my side, and I'm just done. Nice, Okay. nice. So you believe having quality friends over Want quantity yes, I friends? totally believe it. And I also have not so many friends. I don't have not so many friends. And there's a quote I just read that having a lot many friends is way not good than having a lot of friends. Okay, nice. So you believe in obviously quality, right? Yes, I While we were just sitting down with you having a conversation there, you told yourself to have some athletic qualities. yes. So how did you first identify that you want to go ahead in sports as well? I was in senior KG. I was seeing a match. My family was seeing a cricket match, and I was just sitting with my father and my uncle. And MS Dhoni. I saw him playing, and I just asked my father that who is this player. Everyone is just in the field, and only one player is behind the stumps and is different from all. So I asked him who is he, Okay. and he said he is MS Dhoni, captain of Indian team. And I just said, what is this sport? Which sport are they playing? Obviously, I was in senior KG. I was not knowing. And so I asked him, I also want to play. I also want a bat. So he gifted me first. My first bat was a plastic bat of, and it had a picture of MS Dhoni On it. on it, and it was my favorite bat. I'm not having it now. It was a green color plastic bat, and I still remember I played my first ball with it. And I joined a cricket academy after it. And after that, years passed, days passed, and I wanted to become a wicket keeper. Because MS Dhoni is a wicket keeper, and I told my sir I want to be a wicket keeper. So he just said, okay, let's do this. He was also excited. I was also excited. But yeah, being a wicket keeper is not an easy. Job. Yes. It's You need not an to. easy job. Yeah. You need to be on all the time. You need to switch yourself on every time. If it is a 50-over match, 20-over match, you can't take rest. Nice. ध्येय अगर कोई भी आपसे कुछ भी एक्सपेक्ट ना करे तब क्या करोगे लाइफ में? अगर आप पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ना हो, ना ही किसी ने कुछ मांगा है आपसे, तो आप क्या करना चाहोगे? मैं बस अपनी लाइफ शांति से जीऊंगा, अपने वही 2 3 दोस्तों के साथ। और बट एक ऐसी फीलिंग होती है ना कि
कोई मुझसे क्यों कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, मैं हूँ केपेबल कुछ करने के लिए। सो ये एक ऐसी फीलिंग है जो मुझे नहीं पसंद है। करो मुझसे कुछ एक्सपेक्ट, मैं कर सकता हूँ और मैं करके दिखाऊंगा, मेरे में है ऐसी क्वालिटी। बचपन की अगर हम बात करें ध्येय, तो आप शरारती थे क्या? हाँ, बहुत बहुत। बहुत। नो, जब मैं छोटा था, व्हेन आई वाज नॉट इन स्कूल, मैं इतना शरारती नहीं था। जब मैंने स्कूल ज्वाइन किए, मैंने दोस्त बनाए, तब जाके मेरी वो साइड बाहर आई है। और अच्छा। अब वापस मैं वो साइड नहीं गया, दूसरी साइड। ठीक है, नाइस। आपको रीडिंग का शौक है? इतना नहीं है, पर जो मेरे इंटरेस्ट के टॉपिक्स है जैसे स्पोर्ट्स, मैंने उनकी बुक्स थोड़ी पढ़ी है। ओके, अपार्ट फ्रॉम स्पोर्ट्स मैंने सुना है कि आपको बिजनेस जानने में हम्म। इंटरेस्ट है, तो आप अपने आप को एक एंटरप्रेन्योर की तरह दिखते हो? नहीं, मैं अपने आप को एज ए एंटरप्रेन्योर नहीं देखता हूँ। मुझे खुद का कुछ बिजनेस चालू नहीं करना है। मेरे फादर पहले से ही अपना बिजनेस कर रहे हैं, ओके। मुझे उनका बिजनेस सिर्फ ज्वाइन करके उनको एक्सपांड करना है बस। पर मुझे अलग अलग बिजनेस जानने में मजा आता है। मैं, अगर आप फॉर एग्जांपल आप एक बिजनेस कर रहे हो, मैं आपका बिजनेस जानूंगा, वो बिजनेस को अपने बिजनेस में कैसे इम्प्लीमेंट करना करना है है। मैं वो ही करूंगा। राइट, राइट। आप भगवान में विश्वास रखते हो? हाँ, रखते हो? पहले थोड़ा कम रखता था, पर अभी थोड़ा बढ़ गया है। अभी थोड़ा मैं रिलीजियस हो गया हूँ। अच्छा। मैंने सुना है और मुझे बहुत दुख है कि आप पिछले, मतलब अभी तो यू हैव स्टेबलाइज्ड, बट बिफोर दैट past 2-3 months were rough with you because of passing of your one of your accounts teacher, right? Jay Mahesh sir, with all due respect. कब सुना, क्या सुना, कैसे सुना? इट वाज अ संडे। मंडे मेरी अकाउंट्स की एग्जाम थी, फाइनल एग्जाम 11th। संडे सुबह मैं क्लास जा रहा था, एंड आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माय मैम के क्लास पे मत आओ, यू गो टू सर's हाउस, सर के घर जाओ, सर आपका क्लास उधर लेंगे। हम सर, मैं और मेरे दूसरे फ्रेंड्स सर के घर गए। सर उधर एकदम बढ़िया थे, मतलब अंदर से तो उनको बीमार ही थे, पर हमको नहीं दिखा रहे थे। तब तब हमको नहीं लगा कि सर बीमार है। सर को, हमको लगा कि ठीक है, अब सर का मन नहीं होगा क्लास पे आने का, तो हमको घर बुला दिया। दैट वाज ऑल ओके। फिर सर ने हमको बोला कि 4 बजे तुम क्लास पे आ जाओ, क्योंकि आफ्टर 2 days 12th वाज हैविंग देयर बोर्ड एग्जाम। सो सर ने उनको बुलाया ही था, तो हमको बोला उनको कि तुम बुलाया लोग है भी आ उनके जाओ। लिए। हाँ, हम 4 बजे पहुंचे क्लास पे। 4:30 सर नहीं आए, को लगा कहीं पे काम में अटक गए होंगे। वो स्कूल में भी टीचर थे, तो स्कूल के काम में अटक गए होंगे। 5 बजे हमने मैम को पूछा, मैम सर कहाँ पे है, हमको डाउट्स है थोड़े। तो मैम ने हमको साइड में लिया और बोला कि किसी को बोलना मत, सर हॉस्पिटल में है। तो तब हम थोड़ा डर गए कि यार, सर सुबह तो बराबर थे, अभी दोपहर 5 बजे ऐसा तो क्या हो गया। फिर हमने, ऑब्वियस है कि हमने मैम को पूछा क्या हुआ है, तो उन्होंने बोला कि सर को माइनर हार्ट अटैक आया। तब ऐसा बोलते हैं ना, हम शांत हो गए एकदम। हमारे मन मेरा पूरा बंद हो गया मैं अंदर से कि यार ऐसे माइनर हार्ट अटैक मैं पहली बार सुन रहा हूँ ऐसे मेरे सामने। तो फिर मैम ने हमको शांत कराने के लिए बोला कि अभी सब ठीक है, सर डिस्चार्ज हो गए हैं, वो कल क्लास पे आ जाएंगे। फिर तब हम थोड़ा शांत हुए, पर ऐसा नहीं था। मैम ने सिर्फ हमको शांत करने के लिए ऐसा बोला। 6 बजे 7 बजे हम घर चले गए। 8 बजे मुझे मेरे प्रीवियस सर हरीश सर, उनका फ़ोन आया कि यही महेश सर को क्या हुआ है। वो, मतलब सेम कॉम्प्लेक्स में दोनों का क्लास था, तो दे वर इन टच। सर, वो उनको बुखार बुखार आया होगा, तो ही इज़ इन हॉस्पिटल। देन ही सेड के ग्रुप में तो मैसेज आया कि ही इज़ नो मोर। तो मैंने बोला सर ऐसा कुछ नहीं है, कहीं से भी न्यूज़ फैल सकती है, बच्चे हैं कुछ भी फैला सकते हैं, इनको तो कुछ भी बोल दो, पहाड़ बना देते हैं। न्यूज़ है, आप विश्वास मत करो। फिर सर ने बोला मैं कंफर्म करके बताता हूँ। एंड अभी भी याद है, आई वाज सीइंग मैच, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ऐसा कुछ तो मैच था। एंड 8:30 आई अगेन गॉट द कॉल एंड सेड, "Dhey, my sir is no more."
and obviously I was shocked. I didn't had words what to speak, how to react. My mother asked me what happened, what happened. I just couldn't speak a single word. कुछ नहीं निकल रहा था मेरे मुंह से. कैसे निकले? मैं दूसरे दिन मेरी अकाउंट्स की एग्जाम है. मैं सुबह 10 से 12 सर के घर पे पढ़ के आया हूँ. सर ने मुझे बोला है कि 4 बजे क्लास पे आ जाओ, मैं तुमको उधर मिलूंगा. पर कभी नहीं देखा उसके बाद मैंने सर को. पर एक रिग्रेट है मेरे मन में अभी भी कि वो होता है ना कि एग्जाम है तो एक दिन पहले टीचर्स के पैर छूने चाहिए, अच्छा होता है. मैंने सोचा कि सर तो क्लास पे शाम में कर लूंगा, शाम में पैर छू लूंगा. तो मैंने तब नहीं छुए, तब मुझे पता भी नहीं था कि ऐसे सर है, जाने वाले हैं. तो मैं नहीं छुए पैर. फिर मैं अकाउंट्स के एग्ज़ाम लिखा, दिया, मैं वॉशरूम में गया, तब मुझे लगा कि नहीं, पैर छू लेने चाहिए थे. तो आज उनकी दया से, उनकी कृपा से 2 सम और मेरे राइट चले जाते तो क्या जाता. तो ये एक अभी भी रिग्रेट है कि यार छू लेता तो क्या जाता, क्लास में दूसरी बार छू लेता, डबल पुण्य मिल जाता. पर अभी तक वो रिग्रेट रिग्रेट ही है. फिर आपने लाइफ देखने का नजरिया कैसा बनाया? आपने ऐसे इसको ट्रांजिशन, इसको हम क्या बोलते हैं, इधर से डेथ ऑफ सोल बोलते हैं, ठीक है? तो उसके बाद द डार्क नाइट ऑफ सोल जब खत्म हुई तो आपके लाइफ में कुछ चेंजेस हुए? हाँ, आप ये इंसिडेंट के पहले के दिए और ये इंसिडेंट के बाद के दिए में कुछ चेंज है? सबसे बड़ा चेंज मैं बोलूँगा कि मैं कुछ ज़्यादा ही रिलीजियस हो गया हूँ. कुछ मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि अट्रैक्शन, मुझे भगवान ने ऐसे खुद के पास में बुलाया है, मुझे ऐसा कनेक्शन फ़ील होने लगा. तो ये है जो मैं अच्छा बोलूँगा कि ये एक चीज़ अच्छी हुई है. पर अभी मैं किसी को भी मिलता हूँ, तो मैं खुल के मिल लेता हूँ अभी तो मैं. मतलब ऐसा नहीं है कि चलो इससे कल बात कर लूँगा, परसों बात कर लूँगा, नहीं, सारी बात मैं अभी खत्म करके जाऊँ. क्योंकि मुझे पता भी ही नहीं नहीं है। पता है कि ये भाई मेरी बात होने वाली है कि नहीं होने वाली है. सो बेसिकली ये बेटा, ये एक है कि अगर हम जी रहे हैं तो वी हैव टू लिव इन प्रेजेंट मोमेंट. तो मेरे ख्याल से ये आपने बहुत हार्ड वे में हाँ, सीखा. हार्ड वे तो बोल सकते हैं, पर होता है ना कि ये चीज़ लिखी हुई होती है तो वो होने ही वाली है. तो ये लिखा था तो ये हुआ. कोई-कोई लोग बहुत ईज़ी तरीके से सीख जाते. हाँ, हाँ. ईज़ी तरीके से सीख जाते हैं कि घर वालों ने सिखा दिया, इधर से सीखा. मैंने एक फ़ेज़ अपनी लाइफ़ का जिया है ऐसे सीखते-सीखते. तो हाँ, मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से सीख गया हूँ सीख अभी. गया हूँ क्योंकि आपने सारे सेल्यूलर लेवल पे उसको हाँ. एक्सेप्ट किया हुआ है. राइट. ओके. अगर हम 12th स्टैंडर्ड की बात करें, जो अब आप फिलहाल नितिशाज एजुकेशन में हो, तो कैसा चल रहा है आपका? मतलब बहुत ही बढ़िया चल रहा है. जो हिसाब से मेरे मार्क्स में ऊपर आए हैं, माय गॉड! मैं पहले तो मैं शॉक हो गया, ठीक है, ये तो मैं कर सकता हूँ, ये ईज़ी है. तो हाँ, ये खुद के अंदर का जो मैंने पोटेंशियल फाइंड किया है, ये मुझे अच्छा लगा कि ये मैं अगर नीतिशाज एजुकेशन में आया, तभी मुझे पता चला. नहीं तो आई वाज़ विथ माय फ्रेंड्स यस, डूइंग यस, यस. मिस्चीव्स ऑल अराउंड. कभी भी ये जो मेरे दिमाग में 95 प्लस का जो टारगेट है वो कभी आता ही नहीं. मैं उसमें ही रहता कि जो भगवान दे उतने में अपन खुश. अभी तो मेरे पास है एक टारगेट कि नहीं, ये अचीव करके ही जाऊँगा, वरना तो एग्ज़ाम देता रहूँगा पर ये 95 तो 95 तो लेके लेके ही आना आऊँगा. है. ठीक है. तो जहाँ तक मुझे याद है, आप 11th में ये हुआ हुँ, आपके साथ, फिर आप नए ट्यूशन के सर्च हुँ. में थे, नए कोचिंग के, और आप आपके दोस्तों के साथ आए थे. आपने फर्स्ट टाइम शायद मुझसे ही बात किया हाँ, था हाँ. विदाउट योर पेरेंट्स गेटिंग येस, इन्वॉल्व्ड, येस, क्योंकि येस, आपके पेरेंट्स ने भी आपको फ्री हैंड दिया था कि येस. आपको जहाँ पे जाना होगा फिर हम कंफर्म करवा लेंगे हुँ, एडमिशन. हुँ. तो यहाँ पे जब हमारी पहली मुलाकात हुई, तब कुछ याद है? कुछ 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 टिक हुआ हाँ, होगा ना, तभी हाँ, हम यहाँ पे बैठे हो. हाँ. तब जैसे मैं मेरे 2 फ्रेंड्स के साथ जी, आया था. जी. मैंने मैंने पहले धृतिक्षा मैम को देखा. धृतिक्षा मैम ने बोला, "क्या काम है?" मैंने बोला कि बीएसटी का जो डेमो क्लास. डेमो क्लास चल रहा है, मुझे वो अटेंड करना है. फिर आप आए पीछे से चल के कि यस बॉयज, व्हाट डू यू वांट. मुझे वर्ड्स याद है अभी भी.
फिर आपने इंट्रोडक्शन दिया, हमने हमारा इंट्रोडक्शन दिया, फिर बीएसटी का क्लास यही जगह पे हो रहा था, यही स्टूडियो में हो रहा था, तब हमने वो क्लास अटेंड किया। फिर जाके दूसरे दिन अप्लाइड मैथ्स का डेमो क्लास था, फिर उधर मैं मेरे एक फ्रेंड को लेके आया। मुझे अगर आप मुझे पूछो ना तो मुझे बिल्कुल याद है आप जब आए थे तो यू डिड नॉट इवन हैव टू ट्राई हार्ड डे, यू वर just getting erupted as a leader amongst a group of 5-6 people whom you were around with. तो आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही थी और आप ही लीडरशिप लेके सारे आंसर्स दे रहे थे, सारे क्वेश्चंस पूछ रहे थे। तो आपको ये पता है कि आपके अंदर लीडरशिप, मुझे पता है फुट फुट के है, आपको पता है? अभी अभी पता चला है। जैसे जैसे ये 10th 11th 12th ये 3 साल जो मेरे लाइफ के हैं, इसके अंदर मैंने खुद को बहुत अच्छी तरीके से जान लिया कि हाँ, ये मैं हूँ, ये मैं कर सकता हूँ। पर उसके पहले भी मेरे अंदर क्वालिटीज थी, पर मुझे पता नहीं था कि थी। राइट। सामने सामने वाले तो बोल ही रहे थे कि तू है लीडर, तू अच्छा कर सकता है, पर मैं बोला ये तो सब में ही होता है, मेरे में क्या अलग है। फिर जो 10th 11th 12th में जो अलग चीजें हुई, तब जाके मुझे पता चला कि मैं हूँ अलग थोड़ा, मेरे अंदर है कुछ। बेटा कई बार ऐसा होता है ना कि तुम्हारा बेर मिनिमम लोगों का मैक्सिमम होता है, एंड आई कैन सी कि तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है कि हाँ ठीक है ये तो बहुत आम बात है, पर वो आम नहीं नहीं है। है क्योंकि वो लोगों का मैक्सिमम लेवल है। बहुत सारे बच्चे मेहनत करते हैं, राइट, एवरीवन इज ट्राइंग टू स्कोर मार्क्स, पर अगर नहीं हो पाता है तो क्या एक चीज की वजह से नहीं हो पाता होगा, आपको क्या लगता है? लेट मी बी ऑनेस्ट, सोशल मीडिया, फोन्स सबसे बड़े रीजंस है जिसके कारण मेरे जो 5-6 मार्क रह जाते हैं। सोशल मीडिया एंड फोन इज द बिगेस्ट रीजन फॉर इट। वो जो मैं पढ़ने बैठता हूँ, मैं 1 घंटा पढ़ा, 1.5 आवर्स पढ़ा, फिर वो हो जाता है कि 10 मिनट देख लेता हूँ, क्या जाता है, 10 मिनट में क्या ही हो जाएगा, 2 मार्क कम थोड़ी आ जाने वाले हैं। आते हैं, वही 10 मिनट में 3-4 मार्क कम आते हैं। तो ये जो है, इसको तो मैं एक दिन में खत्म नहीं कर सकता हूँ। तो एक दिन जैसे मैंने 1 घंटा पढ़ा, फिर ट्राई किया कि 10 मिनट और पढ़ लेता हूँ, 10 मिनट सोशल मीडिया चलाने से अच्छा 10 मिनट और पढ़ लेता हूँ, 2 मार्क ज्यादा आ जाएंगे। 10 मिनट और पढ़ा। तो अब जैसे मैं जिम जाता हूँ, तो मेरे अंदर है कि खुद को पुश करो, तो मैं करता हूँ, कंटाल आ रहा है, जो हो रहा है, 5 मिनट और, 5 मिनट और से कुछ नहीं होने वाला है। तो 5 मिनट और, 5-5 मिनट करते करते 20 मिनट भी अगर मैंने खींच लिया तो मेरे लिए बहुत है। बहुत। तो आपको लगता है कि हर रोज हमें एक लड़ाई लड़नी पड़ती है, वो भी खुद ही के साथ यस, करनी यस, पड़ती है, उसके ऑब्वियसली। बिना कोई प्रोग्रेस नहीं, कुछ भी अभी नहीं। अभी मतलब मेरे अंदर कैसा हो गया है कि मैं थोड़ा बहुत सेल्फिश बन गया हूँ। थोड़ा बहुत पहले मैं खुद दूसरों के बारे में सोचता था कि नहीं यार, इसको कैसा लगेगा, उसको कैसा लगेगा, पर नहीं, अभी मुझे खुद के लिए ये करना है, मैं करके रहूंगा। बात जो हो जाए वो, अगर तुमको बात करनी है करो, नहीं करनी है मत करो, मुझे मेरे काम के बीच में मत आओ, बताओ। मुझे करने दो खाली जो मैं कर रहा हूँ। अगर मैं फेल हुआ, कोई बात नहीं, मैं खुद से सीखूंगा, पर रिग्रेट नहीं होगा मुझे कि नहीं किया। बड़ी सीखी होगी कि रिग्रेट किसी बात का लाना ही नहीं है, मतलब वो हम्म। करके खत्म कर ही देना है। ठीक है, गुड। एकेडमिक प्रेशर है, वो आपको मोटिवेट करता है या फिर आपको बहुत ओवरवेलमिंग लगता ओवर मोटिवेट तो करता ही है कि एकेडमिक प्रेशर है। अब जब मैं बिजनेस करने जाऊंगा तो ये एकेडमिक प्रेशर तो उसके सामने कुछ नहीं है। ये तो अगर मैं स्कूल जा रहा हूँ, अगर मैं ट्यूशन जा रहा हूँ, टेस्ट दे रहा हूँ, तो ये प्रेशर आने ही वाला है। है? अगर मैंने प्रेशर नहीं लिया तो वही 10-20 मार्क के और पीछे एक्चुअली भागूंगा। बेटा यू सेड अ वेरी राइट थिंग, दिस इज ओनली द गोल ऑफ एजुकेशन टू मेक योर लाइफ रेडी। आपको शायद ट्रिग्नोमेट्री आपने 10th में जो पढ़ा था वो आपको कभी काम नहीं आएगा, बट जब आप वो पढ़ रहे थे, उसको सॉल्व कर रहे थे, तब आपके ब्रेन के अंदर जो न्यूरल पाथवेज चल रहे थे वो आपको रेजिलिएंट बनाते हैं, वो आपको स्ट्रांग बनाते हैं, व्हिच इज गुड फैक्ट। आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि आई एम नॉट गुड इनफ? यस, एवरी डे, क्या बात कर रहे हैं? एवरी डे आई फील बट दैट। आई सी यू एज अ कॉन्फिडेंट एंड प्रो पर्सनालिटी नो, बॉय। I am confident, I am a pro personality boy, but I have a doubt, a little doubt inside me कि यार, सेल्फ डाउट। a little self doubt।
आई नीड टू पुश माई सेल्फ अ लिटल मोर अगर पुश कर देता तो यार इससे अच्छा हो जाता। बेटा आपको पता नहीं है कि आप बात बात में यहाँ पे 2-3 बुक की समरी दे गए। एक बुक था एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर, जिसमें ये लिटिल मोर माई फादर हैज रेड दैट। जिसमें ये आता है। आप एक और बुक था रेजिंग मेंटली स्ट्रॉन्ग किड्स बाय अ लेडी डॉक्टर, तो मैंने वो बुक पढ़ी है, तो आप मतलब पूरा समरी भी यहाँ पे दे रहे हो और आपको शायद ये पता नहीं होगा क्योंकि आपने पढ़ा भी। नाइस। हाउ डिड दैट एक्सपीरियंस चेंज द वे यू लुक एट लाइफ? लाइक जब आप नहीं कर पाते हो, ठीक है, तो आप फेल हुए होंगे, फिर आपने कमबैक किया होगा, तो इससे आप पढ़ाई छोड़ दो, आपने लाइफ में क्या सीखा? मैंने ये सीखा है कि जो अगर मैं फेल हुआ हूँ तो उसके पीछे भी कोई तो कारण होगा जिसके वजह से मैं फेल हुआ हूँ। तो वो क्या है सबसे पहले तो वो ढूंढना जरूरी है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, इवन मैंने दोस्तों को भी देखा है कि यार मैं फेल हो गया तो क्यों हुआ, ये कोई ढूंढता ही नहीं है, बस चलो दूसरी बार करो। लोगों को गलतियां ही नहीं पता है कि वो क्यों फेल हो रहे हैं, पहले गलती तो ढूंढो। अगर मुझे कुछ बनाना है, सही करना है, तो पहले मुझे देखना पड़ेगा कि क्या हाँ गलत है। एग्जैक्टली तो मैं वही करता हूँ कि भाई मैं इधर फेल हुआ हूँ, इधर मेरे से चीज नहीं हुई है तो वो क्यों हुई है, इसके लिए मैं किसी से भी पूछ लेता हूँ, भले ही वो पेरेंट्स हो, वो फ्रेंड्स हो, वो टीचर्स हो, कोई भी हो, मैं पूछ लेता हूँ। पर एक बात के लिए वो ईगो भी आ जाता है कि यार इससे क्यों पूछ रहा हूँ मैं। टीचर्स के लिए वो बात अलग है क्योंकि वो तो है ही मुझे सिखाने के लिए, पर अगर मैं सेम एज के पर्सन से बात कर रहा हूँ तो वो एक थोड़ा सा ईगो आ जाता है कि मेरे में क्या गलती है, मैं क्यों ये गलती कर रहा हूँ, मैं इससे क्यों पूछ रहा हूँ। ईगो से अगर मैं बात करूं तो मैं व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, माय टीचर यूज्ड टू कंसीडर मी इगोइस्टिक एंड एरोगेंट, जबकि मैं बहुत क्लियर थी कि ये मैं करूंगी या ये मैं नहीं करूंगी। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? हाँ, मैं भी पहले बहुत इगोइस्टिक था, बहुत एरोगेंट था। मेरे टीचर्स ने बोला था कि अगर इसको करना है तो ही ये करेगा, नहीं करना है तो ये उसको देखेगा भी नहीं। अभी भी वैसा ही, अगर जो चीज मुझे करनी है मैं वो चीज करके ही रहूंगा, और अगर मुझे इंटरेस्ट नहीं है मैं देखूंगा भी नहीं वो चीज के ऊपर। बट हाँ, ये जो ईगो एक वर्ड है वो बहुत 3 लेटर का ही वर्ड है, पर बहुत बहुत बड़ा भारी वर्ड है। इसके कारण बहुत सारी चीजें हुई है मेरी लाइफ में, मतलब एक ऐसा टाइम था, बहुत बहुत हाँ, बहुत हुआ है। मैं अगर मुझे पता है कि ये चीज मेरे से नहीं होने वाली है, मुझे थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करूंगा तो हो जाएगी, पर अगर नहीं करूंगा तो नहीं होगी, फिर भी मैं वो करूंगा, भले ही 4 बार फेल होऊंगा पर करूंगा। ईगो ये पता नहीं क्यों है, पर है थोड़ा मेरे अंदर। मेरे ख्याल से कुछ अमाउंट सही भी है, वो हमें हाँ, आगे ले जाता है। अब मैं स्पोर्ट्स में ज्यादा बिलीव करता हूँ तो मुझे लगता है कि ईगो एक एथलीट में, स्पोर्ट पर्सन में होना ही चाहिए। अगर मेरे में ईगो नहीं है तो मैं मैच नहीं जीत पाऊंगा। अगर मैंने ये नहीं सोचा कि इसने 2 6 मार दिए तो मैं 3 मारूंगा, अगर मैंने ये नहीं सोचा तो मैं एक भी नहीं मार पाऊंगा। तो एक एथलीट को ईगो, और एक स्टूडेंट में भी ईगो होना चाहिए कि मेरे कम आए तो हाँ, क्यों आए। मुझे तो लगता है कि एथलीट से ज्यादा स्टूडेंट में होना चाहिए, क्योंकि एथलीट तो उसकी तो लाइफ हो गई, उसने तो कमा लिए पैसे, स्टूडेंट को तो कमाना है। अगर उसके 2 मार्क कम आ गए तो उसको अंदर से होना चाहिए कि क्यों आए 2 मार्क कम, उसके 2 मार्क ज्यादा कैसे आ गए, मैं 4 मार्क ज्यादा लाऊंगा। अब देखो मैं है ना अक्सर यही चीज सारे हमारे ये बच्चे हैं उनको बताती हूँ कि आपकी सप्लीमेंट्री में आप आपका नाम लिखते हो, तो कोई कागज जिसपे आपका नाम हो उसी के सामने कम मार्क्स कैसे आप खुद देख पाते हो? अगर आपका नाम है then it has to be best, यस राइट? यस, तो इतना होना चाहिए कि हाँ मेरा नाम कोई कागज पे तो वो सही तरीके से या फिर सही मार्क्स के सामने होना चाहिए। गुड। आपने कभी अपने आप को किसी से कंपेयर किया है? हैव यू कंपेयर्ड योरसेल्फ? हाँ, यस यस, एवरी सिंगल टाइम, अच्छा। एवरी सिंगल टाइम अगर मैं किसी से बात कर रहा हूँ तो मैं सबसे पहला ख्याल मेरे में यही है कि मैं इससे बेटर कैसे हूँ, या ये मेरे से बेटर कैसे है। और फिर आपने उसको चैनलाइज किया है? मतलब वापस वही बात है कि मैं वो एज अ ईगो ले लेता हूँ वो बात। चैनलाइज मैंने इतने अच्छे से नहीं किया है, पर एज अ ईगो की ये बेटर कैसा है मेरे से, ये इसमें ऐसा तो क्या है जो ये मेरे से ज्यादा पर फिर ऊपर ये है। फीलिंग को आप कहाँ लेके जाते हो, मुझे वो जानना
उसका बेटर पॉइंट्स नोट डाउन करके अपने में इम्प्लीमेंट करते हो या फिर थोड़ी जेलसी आ जाती थोड़ी जेलेसी आ आ ही जाती जाती है, थोड़ा अपसेट हो जाते हो हाँ हाँ कि शायद वो नेचुरली उसको वो गिफ्ट हुआ होगा शायद जो तुम्हारे पास नहीं होगा। ठीक है, नाइस। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं मेरी मिरर के साथ ही बात कर रही हूँ। ठीक है, आपने बोला कि कैलकुलेटर्स क्लास 12th में हाँ भाई डलवा दो, हाँ तो क्या नहीं है और क्या होता है? मतलब जैसे मैंने पढ़ा है अकाउंट्स अप्लाइड मैथ्स जो मैं कर रहा हूँ उसमें से जो अप्लाइड मैथ्स तो चलो जो Combinations है ना, फाइनेंशियल मैथ्स है उसमें तो फॉर्मूला में आ जाता है, पर वो जो नीचे जाके एकदम एंड में जो कैलकुलेशंस आती है वो मतलब पॉसिबल नहीं है कि आप 2 मिनट में कर लो। और 80 मार्क्स का पेपर है तो मुझे पेपर भी पूरा खत्म करना है। अगर मैं 10 मिनट एक ही कैलकुलेशन पे डाल रहा हूँ तो मेरा पेपर कंप्लीट नहीं होगा। और सही जा रहा है गलत जा रहा है हाँ, वो तो फिर भी अगर बचे। मैंने एक पॉइंट का इधर डाल दिया कि मैंने 2 डिजिट के बाद पॉइंट डाल दिया, मेरा पूरा आंसर चला जाएगा। अकाउंट्स में भी ऐसा ही है कि मुझे जैसे एक फॉर एग्जांपल बैलेंस शीट लेते हैं, बैलेंस शीट बहुत बड़ी होती है, मुझे 10 to 15 पर्टिकुलर्स मुझे ऐड ऐड करना, करने रहते हैं। तो मैं वो 10 से 15 पर्टिकुलर्स 2 मिनट में कैसे ऐड करूं? टाइम लगता है, वो आफ्टर टाइम वो ठीक हो ही जाएगा। मेरे फादर करते हैं, मेरे ग्रैंड फादर करते हैं, वो अकाउंट्स मतलब प्रो लेवल प्रो लेवल पे अकाउंट्स करते हैं, वो तो उनका हो जाता है बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस ना। My father is doing business for 10 to 12 years and my grandfather is 20 to 25 30 years से वो business कर रहे हैं, तो उनकी practice है। कौन सी फील्ड में? My grandfather is in textile field and my father is in construction chemical distributor. ओके, नाइस। अगर आपको मैं ऐसा बोल दूं कि यही बार है, आप एक रूल ला दीजिए जो हम एजुकेशन मिनिस्टर तक पहुंचवा दें और वो तुरंत एक बदल जाएगा, मतलब कुछ भी चेंज हो जाएगा, तो क्या चेंज करना चाहोगे हमारी एजुकेशन सिस्टम के बारे में? कैलकुलेटर कैलकुलेटर ही लाना है। कैलकुलेटर जैसे गुजरात बोर्ड में कैलकुलेटर्स अलाउड हैं, हम्म, और मुझे है कि सीबीएसई में क्यों नहीं है, सीबीएसई क्यों अभी भी मैनुअल पे है। अगर गुजरात बोर्ड में कैलकुलेटर अलाउड है, गुजरात बोर्ड ने अगर ये देखा है कि नहीं बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, तो सीबीएसई तो सेंट्रल बोर्ड है, उनको तो पहले देखना चाहिए, वो क्यों नहीं देख रहा है? अगर मैं बिजनेस करने जाऊंगा आगे जाके, तो मैं थोड़ी पेन पेंसिल हाथ में लेके ऐड करने बैठूंगा, मैं तो डायरेक्ट मोबाइल में कैलकुलेटर ही खोलने वाला हूँ। तो और वो भी नहीं है कि कैलकुलेटर दो तो मेरा एग्जाम एकदम टॉप जाने वाला है, कैलकुलेटर में भी प्रैक्टिस चाहिए, नंबर्स को जल्दी जल्दी टाइप करो। हाँ, एब्सोल्युटली, आई गेट इट। आपने हमारे साथ एनएलपी के क्लासेस लिए हैं, हाँ तो आपको वो मजा आता है? हाँ, एनएलपी आई एंजॉय एनएलपी वेरी मच। मतलब वो मैं एनएलपी को कैसे देखता हूँ कि मैं 2 घंटे क्लासेस लेके 3 घंटे क्लासेस लेके मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ, मेरे से अब नहीं होगा, तो एनएलपी एक ऐसा सेशन है कि हाँ इधर थोड़ी एकेडमिक से और जाके बातें होगी, तो इसको मैं एज ए रिलीफ लेता हूँ लेता हूँ, कि ठीक है, और हाँ नई चीजें जानने को मिलता हाँ है अबाउट हमारा दिमाग कैसे काम करता है और हम्म। हमें कैसे। अगर एक चीज आप आपके पेरेंट्स को ये वीडियो के थ्रू बोलना चाहोगे, तो क्या बोलोगे और यहाँ देख के बोलोगे? मॉम डैड टेंशन मत लो, मार्क्स आ जाएंगे, मैं बैठी हूँ, 95 आ जाएंगे, मैम है मैं मैं हूँ, बैठी हूँ। सर है कैमरा के पीछे, आ जाएंगे मार्क्स, टेंशन मत लो। अगर नहीं आए, वो तो होने ही नहीं वाला है, आने ही वाले हैं, तो बस मैं इतना ही बोलूंगा कि टेंशन मत लो, जो होगा अच्छा ही होगा, और वो मैं ही करूंगा, कोई और नहीं करेगा, मैं ही करने वाला हूँ वो, और ऑब्वियसली मैं। Yes, I am obviously there with him at each and every step of his life, even after 12. And that's my promise to you. ये अगर आपके दोस्त या कोई भी स्टूडेंट या जूनियर या कोई भी ये वीडियो अगर देख रहा है, दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे सेशन, तो आप क्या उनको मैसेज दोगे अगेन? मैं मेरे 3 4 दोस्त का हाँ हाँ नाम हाँ, लूंगा। प्लीज प्लीज प्लीज। नीव, रीवा, माही पस्ता गया मैम, माही पस्ता गया, हाँ यू नो। ठीक है, आई नो शी वाज माय एक्स स्टूडेंट, यस शी हैड स्टडीड विद मी 8 9 and 10। यस, I just don't know how to thank you. Means these were the guys And who girls, were with me at every point of my life. When I was going through that phase, I just couldn't believe that
ये था तो मैं अभी बराबर हूँ, अगर ये नहीं होता तो मैं इधर बैठा भी नहीं होता। और बीच में बहुत सारे झगड़े भी हुए, 10th में, वही 10th में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, उसके कारण 3 महीने हमने बात नहीं की। Oh my God, you are that day जब माही मेरे पास 10th में पढ़ रही थी and then she came one day very upset that there is a boy named Dhyay whom I have fought over with. That girl actually was very upset because of that fight. Because Mahi was with me in 10th standard. Okay. So, but have you mended at the end of yes the day? yes and मैं बोलता हूँ कि वापस जो हमने फ्रेंडशिप वापस पूरी नहीं बनाई है, वो भगवान की वजह से ही हमने बनाई है वापस। और एक इंसिडेंट है, जब हमारा झगड़ा हुआ था, हम 3 महीने से हमने बात नहीं की थी, हम 10th में थे। मेरे मैथ्स में 10th में एक चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, एक, हाँ 10th में है, 13 नंबर उसकी टेस्ट थी ट्यूशन में। तुम्हारे कि हमारे? हमारे हमारे ट्यूशन में टेस्ट थी। तो नीव वॉज इन माई ट्यूशन, नीव एंड रीवा बोथ आर माई ट्यूशन फ्रेंड्स। तो मैं बात नहीं कर रहा था, तो हरीश सर, हमारे सर थे, उन्होंने बोला कि यू गो सिट बिसाइड नीव, एंड he felt so awkward, I felt so awkward, oh my, what to do now? And then हिम्मत करके मैंने उसको पूछा कि भाई कैसा है, चल वापस बात करते हैं। नवरात्रि चल रही थी, तो उसने बोला कि मिल तू। तब मुझे थोड़ा डर लगा, यार मारने वारने ना बुला दे, मिल तू मुझे। तब हम वापस मिले, बात की, सॉर्ट किया, सब ठीक हुआ। तो मैं मतलब तब से मुझे हो गया है कि भगवान बचा लिया आपने मुझे। मुझे वो लगता है कि अच्छा हुआ मैंने वो उसको पूछ लिया कि भाई बात कर लेते हैं, अगर नहीं पूछा होता तो सो थैंक यू। मतलब मैं बोल भी नहीं सकता हूँ कि तू मेरे दिल में कहाँ पे है, तुम सब कहाँ पे हो, पर हो, बहुत ऊपर के लेवल पे हो बस। फैमिली पहले आती है कि फ्रेंड्स? बोथ, आई काउंट माई फ्रेंड्स एज फैमिली। And you count your family as friends? Yes. So कोई लाइन ऑफ डिमार्केशन है ही नहीं? नहीं है, मतलब मेरे ये जो नीव, रीवा एंड माही है, वो मेरे फैमिली के साथ भी बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं। अच्छा। सो मतलब अगर हम 4 लोग साथ बैठे हैं, तो हम मम्मी पापा को भी साथ लेके बैठते हैं, एंड वी ऑल कंसिडर आवरसेल्फ एज फ्रेंड्स। मतलब उधर नो मम्मी, उधर नो पापा, नो बाउंड्रीज, जस्ट मी एंड माय फ्रेंड्स। Nice. Is there anything which you want to tell us, ask us there? Because I think I have asked whatever I wanted to ask. Ma'am, just be with me. I am there, undoubtedly. This is my last academic session. I want to ace it. I want myself at top level. Absolutely. बस उसके लिए. And you deserve it. You can do it. You are already intelligent. Just start finding power within yourself. You're already the guiding light. That's it. बस मुझे I want some mentor with me, जो अगर मैं बहुत हवा में उड़ रहा हूँ तो बोले कि भाई आजा नीचे। शायद अपने आप को दबा भी लिया हो तो हाँ, लेके खड़ा हो जाए। मैंने खुद को बहुत दबाया है। फिर जैसे तब मैं किसी को एज अ मेंटर नहीं मानता था, जो हूँ मैं खुद हूँ। तब मैंने खुद को ऊपर लाया। बहुत डिफिकल्ट है, बहुत, मतलब इट इज वे मोर डिफिकल्ट देन पीपल थिंक। तो आई थिंक देयर मस्ट बी अ मेंटर who needs to be with you, who can guide you till end of your life. Wherever you are, you need a mentor. That's it. Okay, let me tell you, at any point of your life, any of the children who is watching this, you can come and visit me throughout your own life, throughout your whole life. I'll be always available at Nitisha's Nitish Education. Thank you for watching us.